Namaste friends. So this is the second session in our Guru Purnima series. Today we have a very newcomer with us. Not newcomer as in a sense of astrology and Vastu field, but new on my channel. He is my colleague. We learned astrology together, though he learned astrology much ahead of me, but still we were colleagues. Name Vitesh ji. Vitesh ji, namaskar. Welcome to my channel. Thank you very much, Shikhaji. Yeah. So today I think he is going to take the topic of Astro Vastu and give us small nuggets which can be used in the daily life. Right, Nivitesh ji? Yes. Okay. You can start. Namaskar, my friends, and Hari Om. First of all, I have selected this topic, Astro Vastu, because somebody knows astrology, somebody knows Vastu. But this is the combination of astrology as well as Vastu together. Because in astrology, you have seen like 12 houses, and each house says something. Like your first house says about yourself, second house says about your family, third house says about your brother, sister, fourth house says about your happiness and your house and your luxuries and all. So in Vastu also you have seen, like in Vastu also, Vastu means like Vas Vata Iti, like wherever you are living, that is called Vastu. And in Vastu always teaches you to how to live with the natural energy, how to gain natural energy in your house, how to produce positive energy in your house, and how to live happily. So today my topic is the combination of astrology and Vastu, because astrology always helps you with yourself individually, and Vastu helps altogether with your families with whom you are living. So this combination will help you a lot in your future also. Like in Astro Vastu, you can see like what is your kundli and which place it will suit you for business as well as residence for living, and about your walking also, like where you have to place your main cabin for your staffs generally, and what will be your motivation to progress your business. So in Astro Vastu, it's a very nice combination. Like if you'll see, like you want to do a very good house, you want to make a house. So how you will make it? So you will consult your general Vastu consultant, or you will go with the YouTube channels and with the help of other social media. Like you will see the general, they are guiding you where you have to sit, where your cabin should be, your staff should be placed. But according to the Astro Vastu, we can check your Kundli. In your Kundli, if your strongest planet is helping you, in astrology, we are calling a Sarak Graha, a Balwan Graha in your Kundli. If your Sarak means every time he will do your good favor, he will be with you every time, in your bad time or in your good time. If your Sarak Graha is, for example, like your Sarak Graha is a Shani, so with the help of Kundali and as a consultant, I will definitely guide you to sit in your west direction. Use your direction more western side. Like it will definitely make you much more stronger
because your Sarak Graha, your Balwan Graha in your Kundli is Saturn. Correct. And So this second is position, generally for only with the workplace, in your work profession, or for everywhere. everything? Like Everything. अगर आपने देखा होगा, मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी से because Correct. some viewer will not Yes. understand in English and our राष्ट्रभाषा Correct. is हिंदी. तो Correct. मैं अब स्टार्ट करता हूँ हिंदी में कि जैसे आपने देखा होगा कि कुंडली अगर आप हाथ में लेते हो Correct. तो किसी जातक की कुंडली लेते हैं तो आप देखते हैं कि जातक का शनि ग्रह जो है वो बहुत पावरफुल है, उच्च का है या अच्छे स्थान पे बैठा है या अपने मित्र की राशि में बैठा है. Correct. अब उनके एस पर अगर आपने देखा होगा तो एस्ट्रोलॉजिकल आप देखोगे तो उसमें वो शनि के गुण दिखाई देंगे क्योंकि उनका सबसे बलवान ग्रह शनि है. Correct. अब अगर आप वास्तु में देखोगे तो वो ही जातक जिनका प्रथम नाम अपने घर में होगा यानी फ्लैट का जो ओनरशिप का नाम होगा, तो आप अगर देखोगे तो उनका जो मास्टर बेडरूम होगा वो फ्लुकली, अगर वो जातक का प्रोग्रेस कर रहा है तो फ्लुकली उनका पश्चिम दिशा में ऑटोमेटिक उसका मास्टर बेडरूम आ जाएगा. या पश्चिम दिशा रिलेटेड उनकी सारी चीजें ज्यादातर जैसे कि तिजोरी है, अपने कबाट है, वार्डरोब जहाँ पे वो अपने वस्त्र या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो सब पश्चिम दिशा की ओर ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर वो जातक प्रोग्रेस कर रहा है. अगर किसी शत्रु ग्रह की महादशा चल रही है जहाँ पे जातक को फेवर नहीं मिल रहा है, यानी ज्योतिष विद्या में आपने देखा होगा कि जैसे आपका सबसे कमजोर ग्रह हो या आपकी कुंडली में जो ग्रह आपको फेवर नहीं दे रहा हो, आपके लिए रोग उत्पन्न कर रहा हो या शत्रु उत्पन्न कर रहा हो, तो उस ग्रह की महादशा में जातक जब अपना घर या ऑफिस लेता है तो उनके साथ ऑटोमेटिक क्या होता है, गलत डायरेक्शन में उनकी चॉइस हो जाती है और उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है. फिर जातक कहता है कि हमने ये नया घर लिया या जब से हमने ये नई ऑफिस ली है तब से हमारे यहाँ पे धीरे 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 हम डाउन होते जा रहे, हमारे पैसे में कमी होती है, हमारे व्यवहार में प्रॉब्लम्स आते हैं, झगड़े होते हैं आपस में, यानी कुछ न कुछ परेशानियों से जातक जुड़ा रहता है. तो कंसल्टेंट क्या करता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कॉम्बिनेशन जिनको आता है वो जातक की कुंडली से जान लेता है कि उनकी महादशा अब उनके जो ग्रह की चल रही है वो उनके फेवर में नहीं है और ये फेवर में न होने की वजह से उनको सही दिशा में अपना मास्टर बेडरूम नहीं मिल रहा है, अपना किचन जहाँ पे जो खाना पकता है और जो जातक ग्रहण करता है उनकी भी तो असर होती है अपने जीवन में. That is the तो main. ये गलत डायरेक्शन में ये सब जा रहा है. तो एस्ट्रो वास्तु सीखने से आप उनको गाइड कर सकते हो कि आप ये बेडरूम छोड़कर आप ये दिशा में रहना शुरू करो और अपने किचन का जो स्टव है आप ये दिशा से लेकर ये दिशा में चेंज कर लो. तो मैंने काफी देखे हैं कि परिवर्तन आपको विद इन 90 डेज मिलते हैं क्योंकि कोई भी वातावरण जो होता है उनको चेंज होने के लिए और अपनी बॉडी को उसको चेंज जो है जो परिवर्तन होता है उनको ग्रहण करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं. तो जैसे आप ये चेंज करते हो तो उसके बाद आपके जब घर के वातावरण हो या ऑफिस के वातावरण हो उसमें बदलाव आपको 15-20 दिन के बाद शुरू होते ही दिखाई देगा और संपूर्ण परिवर्तन जैसे हम साइंटिफिकली देखते हैं
तो आपको 90 डेज के अंदर उनके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। इसलिए मैं ऑलवेज एस्ट्रो वास्तु पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और ज़्यादा जोर देता हूँ कि एक ज्योतिष जो है उनकी कुंडली देखकर वो जातक को कर सकता है अच्छा, उनके परिवार को अच्छा कर सकता है, मगर वो जहाँ पे रहवास करता है या जहाँ पे बिजनेस करता है वो जगह को, उनके जो बिजनेस में काफी सारे स्टाफ होते उनको वो पॉजिटिव नहीं ला सकता है। एक वास्तु कंसल्टेंट होता है, वो ऑफिस या घर के प्रेमाइसिस को अच्छा कर सकता है, पर पर्सनल जातक के रोग है या उनकी मानसिक शक्ति है उनको नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन तो इसमें अगर सपोज नाउ इन वन फैमिली एटलीस्ट मिनिमम 4 people who are there. या So if we do it according to the owner, and what if it that same thing, the same combination is not working for the other members of the family? They might have a different combination, no, in their charts, जी and then जी this house cannot be suitable for them. जी, तो आज फिर यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे ज्योतिष ने हम्म, सूर्य को पिता का एक मान दिया है, हम्म, तो जैसे सूर्य है तो सूर्य का जो भी प्रकाश आता है तो सारे अंधकार को दूर करता है, ये ज्योतिष का मानना है। और हमने भी देखा है क्या जो सुबह में सूर्य आता है वैसे ही इंसान के अंदर चेतना का उद्भव होता है, इंसान के अंदर एक जागृति आ जाती है। ऐसे वस्तु के अंदर भी अगर आप देखोगे तो घर के मेन सदस्य को अगर आपने सही दिशा दे दी और उनकी प्रगति और उनकी उन्नति या मानसिक शांति आ जाती है तो घर के दूसरे सदस्य को छोटी मोटी तकलीफें वो कवर हो जाती है। क्योंकि जैसे एक टीम का कैप्टन होता है या अपने देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो सर्वगुण संपन्न हो तो बाकी के थोड़े बहुत जो इश्यू है या थोड़ी बहुत जो तकलीफें हैं वो कवर हो जाती है। आप सभी का तो एक साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मानता हूँ कि घर के जो दूसरे सदस्य है, जैसे एक फैमिली है वो उनके 4-5 सदस्य है, बीवी है, बच्चे हैं, साथ में कोई माता पिता भी रह रहे हैं, तो सभी का तो अगर आप करने जाओगे तो सभी not को तो आप possible. एक योग्य दिशा में स्थान नहीं दे सकते। Correct. मगर मेरा मानना है कि अगर गाड़ी का इंजन स्ट्रॉन्ग हो तो फिर गाड़ी के डब्बों की कंडीशन अगर इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो आप 90% तक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम फोकस ज्यादातर करते हैं घर के जो मेन सदस्य है तो उनकी सपोज कुंडली नाउ द्वारा। अगर वाइफ के नाम पे है और जी वाइफ तो हाउस वर्क हाउस जी नॉट वर्किंग है, शी इज जस्ट डूइंग हाउस वर्क, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करेंगे मेल लाइक हम हस्बैंड के क्या लिए? करते हैं, जैसे कि वाइफ के नाम पे है घर हम्म, तो हम वाइफ की कुंडली से उनके घर की हम परिस्थितियां बदलते हैं, क्योंकि वो हाउस वाइफ है तो बट नेचुरल है कि हाउस वाइफ है तो 24 आवर्स उनकी एनर्जी लेवल वहां पे ही रहने वाली है, निवास स्थान। करेक्ट। और जो हस्बैंड है जो काम पे जाते हैं वो काम का जो ऑफिस का प्रीमाइसिस है वो हम हस्बैंड की कुंडली द्वारा हम उनकी सिटिंग अरेंजमेंट, उनके हाथ के नीचे जो प्रजा है वो हम उनके हिसाब से सेटिंग करके उनको देते हैं कि ऑफिस का वास्तु जो है वो हस्बैंड की कुंडली से होता है, और जहाँ पे वाइफ के नाम पे यदि फ्लैट हो तो वाइफ की कुंडली देखकर हम उनके हिसाब से वो अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, ओके। सो दिस एंड इट इज नॉट नेसेसरी ना कि घर कर रहे हैं तो ऑफिस भी हम लोग ही करें या उनके पास ऑफिस भी हो, ये भी जरूरी नहीं है। या अगर घर के अंदर से ही अगर आप काम कर रहे हैं पुरुष, तो आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो कभी भी एक घर घर जो है वो एक के नाम पे नहीं रहता है।
भले प्रथम नाम वाइफ का हो मगर दूसरा हस्बैंड का। और आज ये कानूनी तौर पे अगर आप देखोगे तो ऑलवेज शेयर होल्डिंग जो होता है निवास स्थान का वो 50-50% होता है। तो बट नेचुरल है कि हम दोनों की कुंडली से हम देखते हैं, और अगर यदि दोनों की कुंडली में काफी तफावत है तो शिखा जी हम ये तय करते हैं कि वाइफ हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड घर हस्बैंड से के काम कर रहा है, तो वाइफ का जो है वो हम किचन की पोजीशन अच्छी देते हैं जहाँ पे उनके अधिकतर समय 3 से 4 घंटा किचन में जाता है, तो उनको कौन सी एनर्जी सूट होती है वाइफ की। और हस्बैंड कहीं ना कहीं घर से काम करता है, ऑपरेट करता है, तो हस्बैंड के लिए कौन सा बलवान ग्रह है। और वास्तु के अंदर अगर देखेंगे तो वास्तु में भी बहुत अच्छा दिया है डिस्क्रिप्शन के हर दिशा को एक ग्रह का प्राधान्य दिया है, और वो भी साइंटिफिक तौर से दिया है। एंड वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। इफ आई टेक कॉमन वास्तु, इट डज नॉट, इट गिव्स मी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। और ये समझाया गया है कि जैसे पूर्व दिशा है तो वहाँ पे सूर्य का महत्व क्यों है। पृथ्वी के अंदर जो भी उगम स्थान क्षितिज से है वो सूर्य का उगम स्थान पूर्व है। तो वास्तु ने भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रहों को समझा कर साइंटिफिकली हर एक को प्लेसमेंट दिशा वाइज दी है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पहले के ज्योतिष और वास्तु जो थे ऋषि मुनि, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा कर हमको ये शास्त्र दिया है। हमें सिर्फ उनका सही ढंग से उपयोग करना है। बहुत ही सुंदर। Any things you would like to give as remedies or something which is very common and everyone can do? Tomorrow is Guru Purnima and eclipse also. Yes. तो मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि एज ए गुरु अगर गुरु पूर्णिमा का मुझे देना है तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज का जो वातावरण है उसमें अगर आप जनरल अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो उसमें ज्यादातर सूर्य डैमेज हुआ है। तो मैं लोगों को यही बताऊंगा एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए वास्तु कंसल्टेंट, कि नॉर्मली अपने जो भी बुजुर्ग है उनको ज्यादा से ज्यादा सूर्य की एनर्जी दीजिए। ईस्ट डायरेक्शन को ज्यादा से ज्यादा आप खिड़की हो या जो भी हो मॉर्निंग में खुला रखिए, 11 बजे तक 12 बजे तक उनकी सूर्य की प्रकाश आपके घर के अंदर आने दीजिए। तो ये बीमारी बहुत ही धीरे 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 आपके घर से ऑटोमेटिक चली जाएगी। और यदि आपके घर के अंदर कोई खिड़की पूर्व दिशा से नहीं आ रही हो तो आप सूर्य की जाप, सूर्य के जाप आजकल YouTube में भी अवेलेबल है। और आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैनलों से सूर्य की जाप ले सकते हो। तो सुबह में हो सके तो एक माला कीजिए। अगर यदि आपने सूर्य को पावरफुल कर दिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बीमारी ज्यादातर ये घेरी रहेगी आपको, क्योंकि आरोग्य का कारक भी सूर्य को दिया है, ज्योतिष ने भी दिया है और वास्तु ने भी सूर्य को इतनी इम्पोर्टेंस दी है। तो एज ए गुरु पूर्णिमा के हिसाब से मैं दूंगा कि आपके घर के अंदर पूर्व की खिड़की यदि न हो और आपका सूर्य का प्रकाश घर के अंदर न आता हो तो आप सूर्य की आप माला कर सकते हो। रोज सूर्य के जाप आप रोज चालू कर दीजिए तो ये बीमारी आपको कहीं नहीं छुएगी। न सिर्फ कोरोना मगर आप पहले से भी ज्यादा अच्छे तंदुरुस्त रहोगे। और यही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहता है। एकदम सही। Surya is the Karaka of the first house. It's your health. It is after health you will definitely get the wealth. So improving the sun in your chart is very very important. Yes, for entire family. अगर वो सूर्य को अगर यदि सूर्य का वो अच्छी तरह से
सूर्य का जाप करें और सूर्य की एनर्जी अपने शरीर में रखे, तो मैं समझता हूँ कि ये काफी रोग दूर हो सकता है, क्योंकि सूर्य एक प्रकाश है, अग्नि का गोला है। जैसे प्रकाश आपके आजू बाजू भी आता है तो अंधेरा ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। तो सूर्य न सिर्फ आपको रोग से दूर करता है, मगर आपके अंदर की शक्ति को भी शुद्ध करता है, आपके मानसिक शक्ति को भी, आत्मा को शुद्ध करता है, आपकी मानसिक शक्ति को भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच शिखा जी, और We'd love to see you again. आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। जी, same to you. धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Hope to see you more. Yes, definitely. Okay. Yeah, thank you so much. हरिओम।